नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजे साहिब। बुलेटिन की शुरुआत अमेरिका की खबर से, जहां व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मुलाकात की, लेकिन चंद मिनटों में ये मुलाकात जुबानी जंग में तब्दील हो गई और देखते ही देखते दोनों नेताओं में तीखी बहस होने लगी। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को बीच बचाव करना पड़ा। दरअसल ज़ेलेंस्की के रूस से युद्ध विराम का प्रस्ताव न मानने पर ट्रंप भड़क गए। ट्रंप ने कहा, हमारे बिना यूक्रेन युद्ध नहीं लड़ सकता, हम समर्थन नहीं करते तो 2 हफ्ते में युद्ध खत्म हो जाता। वहीं ज़ेलेंस्की ने भी ट्रंप के बयान का विरोध किया, कहा मुझे बुलाया लेकिन मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। आपको बता दें कि शांति के लिए एक तरफ तैयार नहीं है ज़ेलेंस्की, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। दोनों नेताओं में बहस हुई है और व्हाइट हाउस के पूरे इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ कि 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस कदर बहस करने लगे। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंचे हुए थे, व्हाइट हाउस में मौजूद थे। वहीं पर मौजूद थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी। और जब दोनों की मुलाकात चल रही थी, बातचीत चल रही थी, इस दौरान ये बातचीत बहस में तब्दील हो गई। चंद मिनटों में ये मुलाकात जुबानी जंग में कैसे बदली वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखते ही देखते दोनों नेताओं में तीखी बहस होने लगी। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को बीच बचाव करना पड़ा। दरअसल ज़ेलेंस्की के रूस से युद्ध विराम का प्रस्ताव न मानने पर ट्रंप भड़क गए। ट्रंप ने कहा, हमारे बिना यूक्रेन युद्ध नहीं लड़ सकता, अगर हम समर्थन नहीं करते तो 2 हफ्ते में युद्ध खत्म हो जाता। वहीं ज़ेलेंस्की ने भी ट्रंप के बयान का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया लेकिन बोलने का मौका नहीं दिया गया, जिसके बाद ज़ेलेंस्की वहां से निकल गए। First of all, during the war, everybody has problems, even you. But you have nice ocean, and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly what you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's backed you far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? This A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid thank you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I Again, tell you. just say thank you. I said a lot of times thank you to American people. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's I very understand. important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running I low know. on soldiers. Don't- Listen, don't, please, you're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look,
If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't with me. For you what, that wasn't with me. That was with a guy named Biden who was not a smart person. That was with Obama. It was your president. Excuse me. इस तीखी बहस और इस मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा कि धन्यवाद अमेरिका, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। ये ज़ेलेंस्की के शब्द रहे। उन्होंने लिखा कि यूक्रेन को न्यायपूर्ण और स्थायी शांति चाहिए। ज़ेलेंस्की ने लिखा, हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये बहस आपने सुनी। इस मुलाकात के बाद इन्होंने ट्वीट किया। एक बार फिर से आपको बता दें कि ट्रंप से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की ने क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि धन्यवाद अमेरिका, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। यूक्रेन को न्यायपूर्ण और स्थायी शांति चाहिए, हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ कुछ और गेस्ट भी मौजूद हैं। सबसे पहले उमा, मैं आपके पास आऊंगी। उमा, ये जो तीखी बहस हुई है, कौन सी डील इन दोनों के बीच हो रही थी, क्या हुआ था वहां? जी देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति अमेरिका पहुंचे थे क्योंकि जो रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके एक डील अमेरिका के साथ होनी थी, जिसको लेकर कई दिनों से बातचीत चल रही थी और उसको अंतिम रूप दिया जाना था। और उससे पहले ये जो शुरुआती संबोधन था व्हाइट हाउस में, वो चल रहा था। ये पूरा का पूरा जो बातचीत है पत्रकारों के साथ, ये करीब 50 मिनट का है और 40 मिनट तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। दोनों ही राष्ट्रपति जो हैं वो पत्रकारों के एक एक करके सवाल लेते रहे और उनका जवाब देते रहे। लेकिन बात उस समय बिगड़ गई जब ज़ेलेंस्की और जेडी वेंस के बीच बातचीत शुरू हुई और जेडी वेंस ने यूक्रेन को ये कहने की कोशिश की कि किस तरीके से वहाँ एक तरह की तबाही है। और उसके बाद जो ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने साफ तौर पे उनको रोका और कहा कि ऊंची आवाज में बात करने से बात सही नहीं हो जाती। और इसी बीच ट्रंप भी उस बहस में कूद पड़े। तो ये तीखी नोकझोंक में बदल गई। रात में ये बात जो हुई वो हुई। अब जो है बात कुछ आगे बढ़ गई है। जो फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू जो कि पहले से तय था, वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने वो इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद क्या उनको लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनके रिश्ते को बचाया जा सकता है, तो ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया है कि हाँ, इस रिश्ते को बचाया जा सकता है क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका की जरूरत है। अमेरिका के जो लोग हैं वो यूक्रेन के लोगों को बचा सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने माफी की बात किए जाने पर बोला कि हाँ, मैं इसके लिए सॉरी बोलता हूं, जो कुछ भी हुआ। उन्होंने खेद जताया। दूसरी अहम बात यह भी है, किसी इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आखिरकार ये क्यों हुआ, तो उन्होंने पूरा नरेशन देकर बताने की कोशिश की कि जब उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अमेरिका के जो हैं वो दोनों इस बात को लेकर बात कर रहे थे कि कैसे यूक्रेन तबाह हो गया है, वहाँ के सैनिक मारे जा रहे हैं। तो इन बातों पर जब अपनी बात रखने की कोशिश की तो फिर दोनों ही जो बड़े नेता हैं उन्होंने मुझे घेरा और उसके बाद ये बातचीत की, इस तरह की जो बहस है उसकी शुरुआत हुई। तो कुल मिलाकर ज़ेलेंस्की ने अपनी तरफ से खेद जता दिया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से यह जरूर कहा गया है कि ये जो बातचीत है वो पटरी पर नहीं आएगी। और ये बात व्हाइट हाउस के भीतर भी हुई, जो कैमरे के सामने हुआ वो तो हुआ ही। उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कॉल लिया अपने सलाहकारों के साथ मिलकर। उसके बाद मार्को रूबियो ने इस बात की इत्तला दी जो NSA हैं उनको, और उसके बाद ज़ेलेंस्की को इस बात को लेकर सूचित किया गया कि अब आगे बातचीत नहीं होगी। उसके बाद ज़ेलेंस्की और उनकी टीम जो है वो व्हाइट हाउस से निकल गई और ये भी जानकारी आई कि तब तक यूक्रेनी साइड जो है वो बातचीत करने को आगे तैयार था, जो रेयर अर्थ डील होनी थी उसे लेकर। तो ये बातचीत जो कि एक समझौते के लिए उस दिशा में बुलाई गई थी, वो आखिरकार इस रूप में फलित हुई, इस बदसूरत रूप में फलित हुई कि अब दोनों ही देशों के रिश्ते जो हैं वो ज्यादा एक मुश्किल दौर से गुजरते नजर आ रहे हैं। और लेकिन देखना है कि अमेरिका की तरफ से आगे और क्या कदम उठाए जाते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र सचदेवा विदेश मामलों के जानकार हैं और डॉक्टर जाकिर हुसैन विदेश मामलों के ही जानकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं अश्विनी सिवाच सर आपके पास आऊंगी। क्या लगता है कि अब क्या यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ये जो पूरा विवाद हुआ इसके बाद? हाँ बिल्कुल, देखो, और उसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन बिना अमेरिका के हेल्प के
लड़ नहीं पाएगा, स्पेशली रूस से, क्योंकि उसको 30 से 35% जो मदद मिल रही थी वो अमेरिका से मिल रही थी। और कहीं ना कहीं जो बात पटरी पे जा रही थी, एक बार रेयर अर्थ मटेरियल डील हो जाती और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं बातचीत हो रही थी सीज फायर के बारे में, और सीज फायर के बारे में आगे बातचीत होनी थी, क्योंकि पहले अमेरिका और रूस के बीच में बात हो रही है, फिर उसी बातचीत को बढ़ा के एक प्रकार से यूक्रेन को भी दाखिल किया जाता और यूरोपियन यूनियन को भी। तो वो बात जब पटरी पे चल जाती तो शायद कहीं ना कहीं सीज फायर होता, क्योंकि ये लड़ाई 3 साल से चली हुई है और इस लड़ाई के अंदर यूक्रेन कोई जीत नहीं रहा। यूक्रेन हर रोज ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर धीरे धीरे अपनी जमीन गुमा रहा है। उसने पहले ही कम से कम 15% के करीब 2022 के बाद गुमा दी, और अगर 2014 के बाद देखें जो क्रीमिया गुमाया तो करीब 18 से 20% है। तो अगर ये लड़ाई चलती रहेगी तो यूक्रेन जो है और अपनी जमीन गुमाएगा इस यूक्रेन में। तो इसका सलूशन यही था कि कोई ना कोई सीज फायर की बात हो, मगर आपस में नोक झोंक होने के कारण ये बातचीत नहीं हुई, क्योंकि जो अभी बातचीत के फल निकलना था वो था रेयर अर्थ मटेरियल डील। वो एक बार डील हो जाती तो फिर अमेरिका जो था अगली बातचीत करता। के अंदर जो मतभेद आ गए, जो सोच विचार में यूक्रेन समझता है कि अगर वो सीज फायर करेगा तो उससे पहले उसको एक प्रकार सिक्योरिटी गारंटी मिलनी चाहिए, क्योंकि जो जेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर जो सीज फायर होता है उसका कोई मतलब नहीं, वो एक मिलिट्री पॉज है, क्योंकि रूस जो है उस मिलिट्री पॉज का इस्तेमाल करके फिर दोबारा हमला करेगा। जब तक आप कोई सिक्योरिटी की गारंटी नहीं देंगे तब तक इस डील का कोई फायदा नहीं। मगर ओवरऑल ऐसा लगता है कि जो कुछ हुआ वो अनफॉर्चुनेट था। अभी भी चांसेस हैं दोबारा जो इनके बातचीत को पटरी पर आने के। शायद अब जेलेंस्की जो है अब यूके में गए हैं, वहां बातचीत करेंगे बाकी यूरोपियन लीडर से। हो सकता है दोबारा ये पटरी पर आए, क्योंकि पटरी पर अगर नहीं आती है बात तो फिर ये मुझे नहीं लगता कि जेलेंस्की के लिए कोई अच्छी न्यूज है, यूक्रेन के लिए अच्छी न्यूज है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन अकेला मदद नहीं कर पाएगा यूक्रेन को इस लड़ाई के अंदर। यूएस की बहुत जरूरत है यूक्रेन को, और सच्चाई यह है कि इस लड़ाई का अंत होना चाहिए। इस लड़ाई के अंदर अभी डायलॉग डिप्लोमेसी से कोई ना कोई बात आगे बढ़नी चाहिए। उसकी अमेरिका की जेलेंस्की को बहुत जरूरत है। मुझे लगता है अभी भी बहुत चांसेस हैं कि कहीं फॉरगेट एंड फॉरगिव करके दोबारा इस बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। इमीडिएटली शायद ना हो, मगर आने वाले समय में ऐसा लगता है इसी तरफ जाना ही उचित है। रविंद्र सर, आपको क्या लगता है अभी भी ये बातचीत पटरी पर लौट सकती है? कितने चांसेस आपको लगते हैं? बिल्कुल लौट सकती है, और दो सिनेरियोज हैं। आई मीन ट्रम्प देखिए नेगोशिएटर है, वो ब्लफ करता है, प्रेशर करता है, और वो एक्सपेक्ट भी करता है नॉर्मल अपने बिजनेस में, वैसे भी पॉलिटिक्स में भी, कि जो दूसरी पार्टी है वो भी पीछे पुशबैक इत्यादि करे। और अभी भी आप देखिए आखिरी में जब ट्रम्प जाते हुए उसने कहा कि अगर वो शांति करना चाहता है, तो पीस करना चाहता है, मैं तैयार हूं। तो पटरी पे एक उस एंगल से आ सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जेलेंस्की रिजाइन कर दे, क्योंकि जेलेंस्की बहुत ज्यादा इसके जो रिश्ते ट्रम्प से अगर लगता है कि बिगड़ गए हैं, तो यूक्रेनियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा नई इलेक्शन हो यूक्रेन में, बट विद इन यूक्रेन, हालांकि जेलेंस्की का सपोर्ट कल की इस मीटिंग के बाद यूक्रेन के अंदर बहुत ज्यादा और बढ़ गया। वहां पर लोग उसे हीरो टाइप मान रहे हैं कि इसने ट्रम्प के सामने खड़े होकर इतनी ब्रेवली बात करी है। बट ये भी हो सकता है कि जेलेंस्की रिजाइन करे और कोई दूसरा लीडर आए। बट मैं वापस जाते हुए 3 बात क्विकली कहना चाहता हूं। पहली बात जो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, और इसमें शायद अमेरिका की मिस्टेक ज्यादा है, इस मीटिंग का क्या कोई होमवर्क नहीं करा गया था? क्या ट्रम्प सरकार को यह नहीं पता था कि जेलेंस्की के विचार क्या हैं? और जेलेंस्की को यह नहीं पता था, जेलेंस्की सरकार को, कि ट्रम्प के सरकार के व्यूज क्या है? तो कोई भी इस लेवल की मीटिंग होती है, उस मीटिंग के होने से पहले 80% काम तो ऑलरेडी दोनों साइड्स का आपस में एग्रीड हो जाता है। लीडर्स की मीटिंग तो एक फाइनल टचेस के लिए होती है, कुछ यस नो बिग डील्स के लिए। तो पहली बात, एक मिस्टेक, कोई होमवर्क नहीं करा गया। दूसरी बात, ये जो प्रेस मीट करी गई इसकी कोई जरूरत थोड़ी थी।
अभी तो ये दोनों ज़ेलेंस्की अंदर आए, मिले, हाय हेलो करके अंदर जाते क्लोज डोर में, जब इन्हें पता है कि इतने सारे मुद्दे हैं जो कि आपस में भी क्लैरिफाई होने हैं, क्लोज डोर में मीटिंग करते, जितना मर्जी लड़ते, तू मैं करते, गिल्ले शिकवे निकालते सारे, और फिर बाहर आके चाहे कहते हो कि डील नहीं हुई। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स है मेरे ख्याल से डिप्लोमेसी के हिसाब से। और तीसरी एक लेसन भी है, देखिए मीटिंग्स में इंटरप्रेटर्स होते हैं। यहां ज़ेलेंस्की इंग्लिश में ही बात कर रहा था तो तू मैं बड़ी तेजी से होते गई, बैक फोर्थ। अगर ज़ेलेंस्की यूक्रेनियन में बात कर रहा होता, वो यूक्रेनियन बात करता, उसकी इंटरप्रेटर इंग्लिश में ट्रांसलेट करती, वापस जाता, तो वो जो जिस तेजी से ये मामला नीचे गिरा ना, डाउनस्लाइड हुआ, ये उस तेजी से नीचे नहीं जाता। तो आई थिंक डिप्लोमेसी में इन हाई लेवल मीटिंग्स में इंटरप्रेटर्स का होना एक सेफ्टी मैकेनिज्म भी होता है। तो ये 3 पॉइंट्स होमवर्क नहीं करा गया। इस प्रेस मीट की कोई जरूरत नहीं थी। हाथ मिलते, शेक हैंड करते, प्रेस को फोटो खिंचाते, अंदर जाते, बोलते बात करेंगे। कोई डॉक्टर ने थोड़ी बोला है कि मीटिंग से पहले आप बैठ के आधा घंटा सारी चीजें डिस्कस करो। जब दोनों साइड्स को पता है, और खासकर अमेरिका को पता है कि हमारे डिफरेंसेस है, हम इसे प्रेशर करेंगे, और इसकी व्यूज क्या, अमेरिकन इंटेलिजेंस, अमेरिका को नहीं पता ज़ेलेंस्की के क्या व्यूज है। पहले कमरे में अंदर जाते, फिर जो भी निष्कर्ष निकलता बाहर आके अनाउंस करते। तो ये मेरे ख्याल से मिस्टेक्स रही हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन से भी सवाल ले लेते हैं सर। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि ये मिस्टेक हुई है या फिर ये बहस जो हुई है किसी खास रणनीति का भी कोई हिस्सा हो सकता है? ये बात भी आपकी मैं सोच रहा था कि हो सकता है ये आपस में जिस तरीके से बात कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं, ये एक स्टंट भी हो सकता है। क्योंकि मेन मसला जो हुआ है इस लड़ाई का वो ये है कि इस डील के जो मिनरल डील होने के बाद यूक्रेन की सुरक्षा कौन करेगा। उस पर अमेरिका ने कुछ यस नहीं बोला, बल्कि ट्रम्प ने ये कहा कि जब अमेरिका के वर्कर्स वहाँ काम करेंगे तो यूक्रेन की सुरक्षा अपने आप होगी, लेकिन कोई क्लियर बात नहीं हुई है। और दूसरी बात यह है कि इमीडिएटली जो स्टंट की बात आती है, इमीडिएटली जो है ट्रंप ने ये कहा कि अगर ज़ेलेंस्की पीस लेके आते हैं तो फिर टॉक होगी। और ज़ेलेंस्की ने भी अपनी फॉक्स इंटरव्यू में कहा कि हमसे गलती हुई है, आई एम सॉरी एंड वी कैन स्टार्ट द डील। और ये जो है इंग्लैंड गए हैं, और कल हम इस पे बहस कर रहे थे कौन सी कंट्री इसमें मीडिएट कर सकती है, तो इंग्लैंड इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री की तरह है जो कि मीडिएट कर सकता है। मुझे लगता है बहुत ही जल्दी ही फिर दोनों लीडर कहीं ना कहीं या तो डायरेक्ट या तो किसी इनडायरेक्ट वे में बात शुरू होगी, कि बात शुरू करना ही जो है इसका सोल्यूशन है। अदरवाइज यूक्रेन तो कहीं खड़ा नहीं होता है। दूसरी तरफ हम रशिया को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं, उसके अंदर भी इतनी शक्ति नहीं है कि इस लड़ाई को कंटिन्यू रखे। लेकिन हाँ, जो 18 से 20% जो लैंड कब्जा कर रखा है उसको पुतिन छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं पे कहीं ट्रंप और जेडी बैंक, अमेरिका और भी तमाम प्राइवेट बिजनेस हाउसेस मिलके वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट करता है। मुझे हंसी आती है कहते हुए कि हो सकता है कि एक ट्रंप टावर जो है उस एरिया में भी न बन जाए। जी, हमारे सहयोगी उमा शंकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उमा, आप फॉरेन अफेयर्स को इतने लंबे समय से कवर करते आए हैं, शायद ये पहली बार हुआ होगा कि 2 राष्ट्राध्यक्षों की व्हाइट हाउस में इस तरीके से बहस हुई हो। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अभूतपूर्व रहा। और देखिए, जहां तक बात है दोनों के प्रेस को संबोधन करने की, तो व्हाइट हाउस में ये परंपरा रही है। और भी हमने देखा कि किस तरीके से इसके पहले चाहे वो यूके के प्राइम मिनिस्टर आए हों, या उसके पहले फ्रांस के राष्ट्रपति गए हों, या उसके पहले इंडिया के पीएम गए हों, या जॉर्डन के किंग आए हों, तो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अभी तक जितने भी लीडर्स आए, चाहे वो नेतन्याहू आए हों, उन सबों के साथ जो है वो एक शुरुआती प्रेस संबोधन जो है वो दोनों ही देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष जो कि मौजूद होते हैं वहां पर उसको देते हैं। तो उसी परंपरा के निर्वहन के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी, इस प्रेस इंटरेक्शन को भी मूर्त रूप दिया गया। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि पूरे 50 मिनट की ये वार्ता है प्रेस के साथ इन तीनों नेताओं की, जेडी वेंस की, राष्ट्रपति ट्रंप की और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की। और 40 मिनट तक सब कुछ ठीक ठाक गया। कई तरह के सवाल पूछे गए, यहाँ तक कि ये भी पूछा गया राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से कि वो जो पहन कर आए हैं क्या वो सूट है या कुछ और है। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रण लिया हुआ है कि जब तक युद्ध खत्म नहीं होता वो इसी तरह के ड्रेस को पहनेंगे, और जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो सूट पहनेंगे जैसा कि आपने पहना हुआ है। जो पत्रकार जिन्होंने सवाल पूछा उनके जवाब में ज़ेलेंस्की ने ये बात कही। तो कुल मिलाकर एक सामान्य बातचीत चल रही थी। उस पूरी बातचीत को मैंने देखा और उसमें ये भी कई
जगहों पे बात हुई कि जब ट्रंप बोल रहे हैं तो जेलेंस्की उनकी बात को काटते हुए आगे बोल रहे हैं, और जब जेलेंस्की बोल रहे हैं तो ट्रंप उसकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से बातचीत चल रही थी, लेकिन जैसे ही जेडी वेंस और जेलेंस्की के बीच बातचीत शुरू हुई तो उसके बाद जो है मामला पटरी से उतरता चला गया, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो वीडियो के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं बार बार। बिल्कुल, आप सब हमारे साथ बने रहे क्योंकि इस खबर पर लगातार बातचीत और चर्चा जारी रहेगी।